So after the conclusion of South Africa and Sri Lanka series in South Africa, we witnessed a whitewash, and that whitewash basically changed the entire WTC table on its head. Kaise? So we're going to discuss about this today. Sushant joins me in to discuss all the possibilities of who is going to qualify for the finals when they're going to happen in June 2025. There are four teams currently in contention, and we are going to discuss about the possibilities of who is going to qualify and who is having a very difficult chance. But our major focus would be on Team India, and we are going to see how results are going to impact Team India's qualification for the final. So welcome, Sushant. थैंक्स यशस्वा। बहुत मजा आने वाला है ये पॉडकास्ट करने के लिए, बिकॉज यार सब लोगों ने ऑलमोस्ट इंडिया को ना के बराबर ही चांसेस दे दिए हैं अभी। See, दिए नहीं है. Results are basically the reason why Team India is करेक्ट। struggling a bit in WTC table. We're currently third now, and South Africa are top the league, are at the top of the table. So थोड़ा difficult है, but there are still chances. Our chances are hanging by thread, but we hope that Team India is going to qualify for the finals. करेक्ट। बिफोर वी स्टार्ट यशस्वा, एक सवाल था। Yeah, न्यूजीलैंड से हार होने के बाद, बिफोर वी लेफ्ट फॉर डाउन अंडर, अगर मैं yeah, आपसे कहता कि हमारी स्कोर लाइन आफ्टर टू टेस्ट मैच लुकिंग स्पेशली एट द ग्राउंड 1-1 होता हेडिंग इनटू गाबा, वुड यू हैव yeah. टेकन दैट रिजल्ट? 1-1 तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल लेता, बिकॉज द वे वी एंडेड न्यूजीलैंड सीरीज, इट वाज प्रिटी सैडनिंग, प्रिटी ड्रामेटिक, बिकॉज होम सीरीज हारना, वो भी इंडिया को, इंडिया में, वो एक खराब न्यूजीलैंड, नॉट खराब न्यूजीलैंड बट एक प्रिटी below average New Zealand, because Kane Williamson was not there and we are considered very strong at home. So ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग का व्हाइट वॉश हो जाएगा इंडिया में. सो वो एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट था. एंड देन कमिंग डाउन अंडर, जहां पर पहला टेस्ट वाज इन पर्थ, सेकंड टेस्ट एट अ डे नाइट टेस्ट. सो these two are like challenging tests, and if you take that result, these results, 1-1 is basically a good result. But to be very honest, this is looking bleak for one reason only: the way we lost in the second test. अगर हम लोग फाइट करके हारते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट यहाँ पर हम लोग जिस तरह से हारे हैं, 180 in the first innings, then after that another collapse of 175. So basically you are not able to score even 200 runs, and then there is Travis Head who is scoring like daddy hundreds. So these are the things which impact a lot. And as we've been saying this a lot, we are focusing on Team India. We are appreciating the way we won in Perth, but that flair was completely missing here in Adelaide. So anyway, that is in the past now. In terms of ICC World Test Championship, we're third in the table now. So things are looking bleak for me. But since you are the optimistic guy between both of us, so I would like to know from your side: are we going to qualify? If you ask me, my view, my perception, my idea, 100% we are qualifying for WTC finals. No Okay. doubt about that. Because यार ये न्यूजीलैंड सीरीज की सब बात कर रहे हैं, बट ये वर्ल्ड वर्ल्ड लाइक WTC चैंपियनशिप जो ICT वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, ये चालू हुआ था 2023 में फ्रॉम वेस्ट इंडीज। फिर Right. हम लोग केप टाउन में साउथ अफ्रीका के साथ दो टेस्ट मैच की सीरीज थी, हम लोग एक टेस्ट मैच हारे थे बाय एन इनिंग्स द फर्स्ट टेस्ट मैच, और उसके बाद हम लोग सेकंड ड्रॉ किया था, मतलब सॉरी सेकंड हम जीते थे और सीरीज ड्रॉ किया था। दैट्स अ कमबैक। ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंग्लैंड के साथ जब इंडिया में 5 टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी, पहली टेस्ट मैच हैदराबाद में हो रही थी, हम लोग हारे थे, और उसके बाद चारों टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हमने धूल चटाई थी। तो देयर वाज अ कमबैक। हमारी यादें है ना, बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं हम लोग, एक गेम एट अ टाइम ही याद रखते हैं मोस्ट ऑफ द फैंस। तो यार दुख मुझे भी हुआ है, बहुत दुख हुआ है जिस तरह से हम लोग सेकंड टेस्ट मैच हारे हैं। बट यार दोस्तों, ये सीरीज खत्म नहीं हुई है। स्टॉप बिहेविंग ऑन इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज इन हम सीरीज हार चुके हैं। मैच हारे हैं, 1-1 हुआ है, बहुत बुरी तरह से हारे हैं, नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। बट अभी भी सीरीज बाकी है, आधे से ज्यादा सीरीज बाकी है। सो आई एम गिविंग दिस इंडियन टीम, द कमबैक इंडियन टीम, अ फुल चांस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर WTC फाइनल्स, बिकॉज इम्पॉसिबल नहीं है, और ये हम आपको क्लियर करेंगे आगे। So that's my viewpoint, Yashaswa. How about you? I'm more of a realistic person. Uh, you speak about facts, you speak about data, but when it comes to seeing the confidence and the body language of players, it didn't look as sharp as Perth, to be very honest.
I'm not Yeah. sure what was the reason, because we were going into Adelaide Test with a lot of confidence. यार ऑस्ट्रेलिया को पहले ही टेस्ट में हराया, वो भी इतने अच्छे तरीके से. बुमराह was the magical performer. Yep. उसके बाद नीतीश रेड्डी was another one. Um, Maybe it was because of pink ball test कि ऐसा हुआ. But since you are extremely buoyant, I believe comeback is on the cards, and hopefully it is there. But how difficult it is going to be, Sushant, because we have lost 4 tests now, and Yep. this has changed the entire complexion of the table. If we talk about the standings currently, so South Africa तो almost पहुंच ही गया है into the finals. They are going to host Pakistan now in this Yeah. month, and they have 2 test home series against Pakistan. Pakistan, if you see, they are currently 7th in the table. So उनका ये वाला जो कैंपेन रहा है WTC का, ये इतना अच्छा नहीं रहा है. But when we Correct. talk about South Africa under Babuma, they have performed really well, and वो लोग Yep. ग्राइंड करके जीत रहे हैं. They're playing as a team, and Yep. I think out of last 7 tests they have won 6 and have drawn 1. So Correct. they've been kind of undefeated team. इस कारण they're the reason why they are on top. And coming to Australia, I was going through the stats, and when I saw the calendar, out of 7 tests they have played, they've lost just 2. One against West Indies and the other one against India at Perth. So उनका भी फॉर्म अच्छा है. The only positive, if I talk about, is Sri Lanka are going to host them in Sri Lanka later on. Correct. So Correct. ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड कैसा रहता है ओवरसीज में, ये हम लोगों को पता चलेगा बाद में. बट उससे पहले आई बिलीव दी स्टैंडिंग्स वेयर इंडिया इज करेंटली थर्ड डजंट लुक गुड फॉर नाउ. And before we move to all the permutations and combinations, anything that you want to add in terms of WTC standings? नथिंग. आई थिंक फिलहाल तो हम सबको ये सब भूल जाना चाहिए और कॉन्सेंट्रेट सिर्फ थर्ड टेस्ट मैच पे करना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेयर एवरीथिंग लाइज. द पाथ टू फाइनल फॉर ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इजी, बट देन ऑस्ट्रेलिया आर ऑल्सो नोन टू फाइट इट इन अ वेरी वेरी टफ वे. यार वर्ल्ड कप की बात ले लो, अफगानिस्तान से मैच हार के बाहर होने वाले थे, सिंगल हैंडेडली मैक्सवेल ने जीता के उनको वर्ल्ड कप ही जितवा दिया. तो यार दे आर नॉट गोइंग टू गो आउट वेरी इजीली, बट उनके लिए भी इतना आसान नहीं है. सो आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया हो ही जाएगा. यस, आई एम 100% कॉन्फिडेंट, बिकॉज अभी तक बहुत सारी टेस्ट मैचेस खेलने बाकी है. हमारी 3 टेस्ट मैचेस बाकी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट मैचेस बाकी है. तो कुछ भी हो सकता है. तो इफ वी कैन पिक अप फ्रॉम दिस फ्रॉम आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस लॉस, I think we can make a comeback, and the third test match is probably definitely going to set the tone कि कहाँ पे ये टेबल जा रहा है. मोस्टली टीम फाइनलाइज कर देगा. Okay. So now coming to the permutations and combinations, how India can basically qualify for WTC finals. So बहुत forward है. First thing first, we have to win tests, and ऐसा नहीं कि 1 टेस्ट जीतना है, 2 टेस्ट जीतना है. If we win 2 tests on a trot, or probably like since 3 tests are left, मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करता हूँ इस बार. चलो पॉजिटिव में अगर हम लोग तीनों ही टेस्ट जीत जाते हैं रिमेनिंग, वी वोंट बी रिक्वायरिंग एनी अदर रिजल्ट कि साउथ अफ्रीका क्या कर रही है, श्रीलंका क्या कर रही है, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा. If we win 3 tests in a trot, we are definitely qualifying without depending on anyone. If we win 2 tests and manage to draw 1, that is the final score of BGT would be 3-1 for India. इस केस में भी we won't have to be dependent on any team, because हम लोग डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे. सिचुएशन कहाँ कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट होगी ना सुशांत, जब हम लोग 2 टेस्ट जीतेंगे और ऑस्ट्रेलिया 1 जीत जाएगी. So as long as we are undefeated in this series from now on, so कोई पंगा नहीं है. बट जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 1 टेस्ट जीता, वहां पर आएगा कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका सीरीज. तो इसमें 2 ही सिनारियो बनते हैं. फर्स्ट सिनारियो इज इंडिया विंस 2 टेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया विंस 1. तो उस केस में क्या होगा कि श्रीलंका अगर सिर्फ 1 मैच ड्रॉ भी करा देती है तो भी हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे. बट अगर ऑस्ट्रेलिया 1 जीतती है, इंडिया 1 जीतती है और 1 मैच ड्रॉ हो जाता है इन 3 मैचेस में से, देन वी हैव टू प्रे आवर श्रीलंका ब्रदर्स कि वो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दे. और एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं कि वो 1 मैच तो ड्रॉ होना जरूरी है, बट अगर व्हाइट वॉश हो जाएगा तो वेल एंड गुड है. सो बेसिकली ये 4 स्टिपुलेशंस अभी करंटली है. फेवर में ये है कि इंडिया अनडिफीटेड रहे फ्रॉम नाउ ऑन, तो कोई पंगा नहीं होगा. बट अगर सिचुएशन वर्स होती है तो ये 2 सिनारियो बैठेंगे WTC फाइनल्स के लिए. दूसरी टीम की बात करूं तो साउथ अफ्रीका है. साउथ अफ्रीका प्रीटी मच रिक्वायर जस्ट 1 गेम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स.
एंड Yep. आई बिलीव दे आर गोइंग टू डू दैट. सो एक टीम तो काइंड ऑफ पक्की लग रही है, वो साउथ अफ्रीका. दूसरी टीम इन तीनों टीमों में से हो सकती है. श्रीलंका के लिए बहुत ही आउटसाइड चांस है, कंसिडरिंग इंडिया हार जाए गंदी तरीके से और ऑस्ट्रेलिया को ये 2-0 से हरा दे. यही पॉसिबिलिटी है. बट सिंस ऑस्ट्रेलिया हैव टू प्ले अ लॉट ऑफ टेस्ट, सो इसलिए उनके पास एक बेनिफिट है कि 5 टेस्ट में से उनको 3 जीतना है. यहाँ पर इंडिया को 3 में से 2 जीतना है और एक अनडिफिटेड रहना है. बस इतना सा सिंपल कॉम्प्लिकेशन. तो ये Simple सिनेरियो but complicated. एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड. Yes, yes. I think ये पर जब जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक टेस्ट मैचेस आगे नहीं जाएंगी, थर्ड टेस्ट मैच के बाद ये जो सीक्वेंस है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये और चेंजेस होंगे. बट यार, इट्स गुड टू नो कि देयर इज डेफिनेटली नो वे वी कैन लूज द सीरीज. वी हैव टू विन एटलीस्ट वन टेस्ट मैच और ड्रॉ करनी है सीरीज, so that the hopes stay alive. But as you rightly said, if we can keep the scoreline of this Border Gavaskar 2024 series at 3-1 or 4-1, then we are heading to the finale. No one's stopping us. एग्जैक्टली. बिकॉज तो क्या हो गया अभी है ना अभी कि सॉरी, नहीं बोल. तो अभी कैसा सीन हो गया है ना कि हम लोगों ने काफी बार ऑस्ट्रेलिया को फेस करा है, हम लोग हारे ही हैं. नॉट not in terms of the WTC final that took place last time. I'm talking about the other series, other tournaments as well. Yeah. But when we met South Africa this year, we were able to defeat them. So I'm just praying we somehow qualify for the WTC finals. We meet South Africa at Lords, and we're going to defeat them over there and get the maize back home. So that is the plan. That is the wish and a hope. ग्रेट. अगर अगर ऑप्टिमिस्टिकली यश मैं तुमसे पूछूं कि यार अभी एग्जैक्टली दिल में क्या चल रहा है हेडिंग इनटू द थर्ड टेस्ट मैच व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन सैटरडे ऑनवर्ड्स, कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्या चाहते हो इस टेस्ट मैच से, क्या चाहते हो रियलिस्टिकली, क्या सोच रहे हो? गाबा की पुरानी मेमोरीज तो मेरे लिए है काफी अच्छी. द वे वी केम बैक, पंत रेस्क्यूड एवरीथिंग. I really want, I mean, जब भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं, there is always one thing in mind to keep the entire set of our data in a way where things basically turn out to be positive for India. ये मतलब हर कोई, not just me, मेरे ऐसे सारे फैंस यही चाहेंगे कि at the end of the day India are in a dominant position. At the end of second Absolutely. day, they are further dominant. At the end of the test match, India goes on to win that match. But situation कैसी हो जाती है ना सुशांत, when you see these players performing so bad, and these are like big names, they've scored like 7,000 8,000 runs in test cricket, then बहुत लेवरेज कैरी करते हैं, और ऐसे में जब ये लोग परफॉर्म नहीं करते और इजीली विकेट थ्रो कर देते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है. बिकॉज देन यू सी एट द अदर एंड दे आर throwing their bats in the dressing room, the Australians, they're throwing their helmets and they are extremely passionate. They're showing that anger ki why did I fail, because they understand एक मैच में भी अगर अच्छा खेले, ये सर्टेन नहीं है कि वो नेक्स्ट मैच भी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे. बट यहाँ पर कैसा है ना, मैंने एक ट्वीट डाला था जहां पर वो मेरा एंगर ही निकल रहा था बाहर कि nobody is being held accountable for what, Correct. for how they are failing, for how many times they have failed, and इसका रेपरकशंस क्या है, कुछ नहीं है. ज्यादा से ज्यादा हो जाए कि जो लेगेसी है वही हम लोग की टार्निश हो रही है कि इतना बड़ा नाम रोहित शर्मा जैसा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना बड़ा नाम विराट कोहली, इतना मी मटेरियल बना हुआ है, हर चीज से बुमराह पे डिपेंडेंट है. दैट इज नॉट हाउ यू विन टेस्ट सीरीज. पंत के लिए सिचुएशन ऐसी रहती है कि चलो यार पंत इज अ नेक्स्ट फैक्टर. केएल राहुल के लिए लोग पीछे ही पड़े रहते हैं, कैसे भी करके फेल हो जाए तो उनका एक एजेंडा पूरा हो जाए. So people are basically waiting more for India to fail rather than seeing them perform good in down under. So इस कारण क्या होता है ना कि बुरा लगता है when our players perform bad, but at the same time they are also human beings at the end of the day, and I want India to perform really well, qualify for the finals, not just for the finals but to shut the critics, because social media has tarnished a lot of things. Everybody is jumping on guns and everybody is like कि नहीं यार ये तो जल्दी से हो जाए, इनको लात मार के भगा दो, ये कुछ कोहली कुछ नहीं कर रहा, रोहित शर्मा कुछ नहीं कर रहा, एंड सिराज का भी हो गया था, सिराज को मतलब सबका ही चल रहा है बेसिकली. व्हेन यू आर डाउन एंड आउट हर कोई आके मारता ही है. तो देयर वाज वन थिंग व्हिच यू सेड कि जब तक ऑप्टिमिज्म की बात है, आपसे सुनना चाहूंगा मैं वापस से कि हाउ डू यू बेसिकली कम आउट ऑफ दीज सिचुएशंस, कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फेलियर की बात कर रहे हैं, तो हाउ डू यू ब्रिंग दैट ऑप्टिमिज्म in our viewers, in our subscribers, and in our family members who is basically watching this video?
वो हम यश बोलते हैं ना, जिससे हम प्यार करते हैं गुस्सा भी उस पे ही सबसे ज्यादा आता है। तो इस राइट। टीम से उम्मीदें इसीलिए है बिकॉज इस टीम ने ही हमें उम्मीदें दी है। यही वो टीम है जो दूसरों के घर में घुस के मारना जानती है। वरना यार हम लोग क्रिकेट कब से देख रहे हैं, टेस्ट मैच क्रिकेट कब से देख रहे हैं। वी वर नॉट नोन टू गो, वी वर नेवर नोन टू बी गुड विजिटर्स। बट ये पिछले करेक्ट। डेकेड में या कुछ सालों में ही आया है कि पूरी दुनिया में हमारा खौफ आया है। तो बैड फेज आता है। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा कि जिस तरह से हम लोग न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हारे और जिस तरह से हम लोग सेकंड टेस्ट मैच हारे, दैट वाज डेफिनेटली वेरी बैड एटीट्यूड, पैशन नहीं दिख रहा था। बट यार ये वही प्लेयर्स है जिन्होंने हमारे पास ग्लोरी लाई है। यार थोड़ा सा रिवाइंड कर लो। ये जो फैंस अभी सोशल मीडिया वगैरह पे है ना, दिस 16-17 इयर्स ओल्ड, इन्होंने देखा ही नहीं है यार क्लास। इन्होंने देखा नहीं है कि हम लोग 95, 96, 98 में अजहरुद्दीन सचिन तेंदुलकर के अंदर हमारी क्या हालत हुआ करती थी। अकेला सचिन परफॉर्म किया करता था, 150 मारा करता था। बट यार राइट। मजा, यार हम लोग हमेशा अंडरडॉग्स बन के ही गए, हमें किसी ने स्कोप नहीं दिया। एवरीवन now speaks about the iconic test series which was held in India in 99-2000 under सौरभ गांगुली। जब वो लोग मुंबई आए थे और जब उन्होंने मुंबई में हमें हराया था, तब दे क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ 16 टेस्ट मैच वन इन अ रो। तो यार जब कोलकाता जा रहे थे किसी ने हमको होप नहीं दिया था, स्पेशली जब हमें फॉलो ऑन मिला था। तभी राइट। निकली थी पार्टनरशिप द्रविड़ और लक्ष्मण की। तभी से वो खौफनाक चीजें हुई। एंड देन चेन्नई में भी वो कंटिन्यू हुआ, तेंदुलकर ने 5 विकेट ले ली, गेम टर्न टर्न किया। वहां पे हमने एक कमबैक किया। उसके बाद 2003 का वर्ल्ड कप था यार, जहां पे हम लोग फाइनल्स तक चले गए साउथ अफ्रीका में। करेक्ट। उसके बाद 2007 के वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप में हम लोग बाहर हो गए और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीता। 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जब सहवाग और सचिन पेविलियन चले गए थे, तब होप्स एकदम कम हो गई थी। वी मेड कमबैक्स। तो यार जब भी सिचुएशन ऐसा इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं है, इट इज गोइंग टू बी दैट एटीट्यूड, दैट वन प्लेयर जो अपना हाथ खड़ा करे और बोले कि यार नहीं, ये शिप को मैं ड्राइव करता हूँ राइट जगह पे। खाली राइट। रोहित शर्मा अगर एक्सेप्ट कर लेना कि यार कुछ चीजें गलत हो रही है, रादर देन जस्ट डिफेंडिंग इट, तो वो सब सही हो सकता है। यार ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो यार जब ये थर्ड, अभी आपने ही दिखाया, वो टेबल दिखाया कि देर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब इंडिया अगर 2-2 ड्रॉ भी करती है तो भी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन गो थ्रू। तो देर इज पॉसिबिलिटी यार। तो जहां जब वो पॉसिबिलिटी दिख रही है तो होप क्यों छोड़े। बिकॉज यार राइट। आप और मैं और करोड़ों इंडियन फैंस ये क्रिकेट का पैशन फील करते हैं। यार हमको ये क्रिकेट से स्माइल मिलती है। तो जब एक चांस है, जब होप है, तो हम लोग नाउम्मीद क्यों हो। अगर सीरीज हार गए तो नाउम्मीद ही होना है। तो जब तक होप है, खुश हो लेते हैं। वो है ना राइट। शाहरुख का गाना, दिल रूठा है मगर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो यार इट्स द सेम थिंग। थर्ड टेस्ट मैच हमको जीतनी है तो पूरा सपोर्ट लगा देते हैं यार। रोहित शर्मा को राइट। पेट भर के गालियां दे दो, निकाल दो, बट रोहित शर्मा 20 सीरीज तो धोनी की तरह छोड़ के नहीं जाने वाला। तो यार एग्जैक्टली। अभी वो है 3 टेस्ट मैच है, इंडिया का कैप्टन है। तो उसको सपोर्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको क्रिटिसाइज मत करो, 100% करो। बट यार वी आर इंडियन फैंस, वी आर सपोज टू बी विद द टीम इन थिक एंड थिन टाइम्स। तो ये वो टाइम है जब द टीम नीड्स अस यार। और मजा आएगा। आई थिंक थर्ड टेस्ट में बहुत मजा आएगा। गाबा की जैसे आपने बोली बहुत अच्छी मेमोरीज है। और ये अगर टेस्ट में जीत गए तो प्रोबेबली वापस पॉजिटिविटी बाहर आ जाइए। यार न्यूजीलैंड के मैच में ही देख लो, केएल राहुल को कितनी गालियां पड़ी थी। सिर्फ एक उसने डिटर्मिनेशन वाला नॉक खेला, उसने रन नहीं एग्जैक्टली। बनाए, खाली वो राइट। डिटर्मिनेशन देखा। पूरा देश पागल हो गया कि हाँ, हम बस यही तो देखना है यार, कि बंदा पैशन दिखाए, डिटर्मिनेशन दिखाए, और यही हम देखना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट कीप्स मी ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। So, with that optimism, we are basically going to wrap this podcast of ours today, because at the end of the day, we want to end on really high point, and that point has already been shared by Sushant. That keep believing, keep having some hope, because till life is there in you, enjoy that life, because उसके बाद तो सिर्फ memories ही रहती है. So make fond memories, एब्सोल्युटली। and very well said, Sushant. I hope that your words come true. I hope that everyone's prayers come true. And ज्यादा हम लोगों को ये स्टिपुलेशंस के बारे में बार बार डिस्कस करना ना पड़े, because after test match 3, definitely the situation and the scenario is going to update furthermore. Yep. So we are going to cover that thing as well. But keep watching, and at the same time we would like to know from our viewers कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया क्वालिफाई कर पाएगी, क्या फाइनल स्कोर होगा. So please comment down that, and keep loving us, keep supporting us. Thank you for watching.